have been close to about 200 billion अगर आप उन profitable companies को करें तो अगर मुझसे आप पूछे aggregate profits कितने थे तो वो 330 थे और जिसमें से 185 oil and gas companies से हमें profit नहीं, ये हम रुपीस की बात कर रहे हैं, बिलियंस की बात कर रहे हैं. रुपीस, these figures are in billion rupees. डॉलर्स होते तो इधर कुछ और शटर कर रहे होते हम ये बताते हुए. But you know these numbers are important. अब ये 2020 तक के numbers हैं, but hopefully in another 3 months ये इनका जो यूनिट है वो अपडेटेड फिगर्स ले आएंगे फॉर द मोर रिसेंट ईयर्स. और इसमें एक जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ये होती है कि हमें सब कंपनीज से डेटा लेना होता है और कुछ कंपनीज ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं दी और कंप्लीट की होती हैं. Companies, of course, have suffered because of lack of autonomy, external interference, weak management, limited accountability, inappropriate boards because fit and proper criteria न CEOs का ठीक से होता था न बोर्ड की composition का होता है और इसकी वजह से over the period financial losses होते गए और quality सर्विस क्वालिटी डिक्लाइन हो गई है कंपनीज की और there has been massive drain on public resources. So Ministry of Finance, the ultimate owner of these assets, and Ministry of Finance rescues these companies when they are in trouble because जो इनकी liabilities होती हैं वो finally ministry से तो settle हो नहीं पाती. तो ये इस बहुत important था कि इनको एक हब में लाया जाए और इनकी aggregate picture पता चले और इस हब में मॉनिटरिंग हो और ये हब इज अ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ओन पॉलिसी और it's a custodian of central monitoring unit. It's a custodian where there will be partnerships and task force that will be established जो कि इन ministries को help करेंगे. Our role is that of keeping the accounting of these companies right, publishing it on time and facilitating the ministries. We are not going to interfere in the day-to-day functioning of these SOEs. But of course, when there are serious issues, the state-owned, ये जो cabinet committee on state-owned enterprises है, it's an institutional mechanism where there will be joint deliberations going forward. तो पहले एक vacuum होता था इस area में. अब ये भी आपको पता है कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने टाइम पे काफ़ी SOEs को रीस्ट्रक्चर भी किया, उनको प्राइवेटाइज भी किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी लेकर आए, but there wasn't a proper framework under which this was happening. And if you read the law, there is a lot of guidance in that. And I will share some highlights of the law, but I will share the highlights of the draft SOE policy. अभी ये हमने अप्रूव इसलिए नहीं की है because we inherited the act और हम इस पे कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा और रिव्यू करके इसको incorporating the comments of all the ministers and stakeholders. But Qamar has already disseminated and solicited views from the public. ये वेबसाइट पे भी हमारे होते थे, मिनिस्ट्रीज के साथ भी किया है, बट चूंकि ये एक नई कैबिनेट थी तो हमने सोचा कि थोड़ा एक राउंड और कर लें, वरना आज ही ये स्टेट ओन पॉलिसी अप्रूव हो जाती. सो वी हैव एक्टेड अ बिट मोर प्रूडेंटली कि हम एक और अपॉर्चुनिटी दें. अच्छा, इसकी ऑफ कोर्स डिकम्पोजिशन आप देखेंगे तो इसमें नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी SOEs में है, but I'll concentrate on the number of 85 commercial SOEs that can pay us dividends and that can be profitable, and some of them are profitable as I have pointed out. If you look at the numbers, of course numbers तो बहुत ज़्यादा हैं SOEs के, but that the ones that really matter
और पावर की 20 है, इंफ्रास्ट्रक्चर की 17 है, मिनरल, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड enterprises की are another 14, and there is further breakdown, but I'm sure my colleagues can give you more information should you need after this press briefing. अब इसमें बहुत credible organizations हैं जो हमने top 10 profit making की लिस्ट बनाई हुई है. We will be very happy to share that list with you, और उनकी 2020 का डेटा भी हम आपको दे सकते हैं, और टॉप 10 लॉस मेकिंग भी हैं जिनको हम टर्न अराउंड के उस पे करेंगे या प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे. लेट मी फर्स्ट शेयर विथ यू the highlights of the State-Owned Enterprises Governance and Operation Act 2023, which was promulgated on 2nd February 2023. इसके salient features ही मैं आपको सिर्फ बताऊंगी. एक, nomination of independent directors, और मैं आपको अपने experience से बताऊंगी कि once you fix the boards, your job is done, and you give full powers to the board to appoint and make sure. But आपको board अच्छी appoint करनी है, उस पे I will tell you what we are thinking of. और majority of the board members should be independent. That has been the discipline restriction. उनका security of tenure होना चाहिए. ये नहीं कि किसी को नाराज कर दिया, कोई बात ऐसी कर दी controversial, उसको निकाल दिया गया कि भाई ये हमारे fit and proper से नहीं आया. There are so many excuses that can be provided. और जो office of the chairperson of the board has to be separate from the CEO. और हमारे यहाँ कुछ कंपनीज यहाँ पे थी, particularly the statutory organization, जिसमें CEO और जो chairperson of the board was the same person, and I don't think that's good practice. फिर पेपरा रूल्स की एग्जेम्पशन इनको दी गई है, लेकिन पेपरा रूल्स को फॉलो करना इनिशियली टू गेट द रूल्स प्रॉपर, और उसकी एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेपरा रूल्स हैज टू बी डन इन एन इफेक्टिव मैनर, और उसकी फिर कैबिनेट अप्रूवल देता है अगर उसकी ज़रूरत हो कैबिनेट की अप्रूवल की. अपॉइंटमेंट्स ऑफ CEOs इज़ वेरी क्रिटिकल, और उस पर काफ़ी नज़रसानी की जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, और पॉलिसी डायरेक्शंस जो देने हैं उसको बड़ा सिस्टमैटिकली स्ट्रीमलाइन किया जाएगा. उसकी अप्रूवल कैबिनेट से चाहिए होगी. सो नो ad hoc interference in these institutions. Let me just talk about briefly the CMU. CMU will maintain the electronic database of financial and operational performance of SOEs, क्योंकि इस वक्त एक जगह में आपको नहीं मिलता ये ना. You have to, एक तो outdated होता है, takes you long. So also it will conduct the analysis of financial, commercial and operational performance of SOEs, and it will have the ability to submit recommendations to the federal government or to the cabinet committee of SOE. Obviously it will compile this data on a semi-annual and annual basis, और ये current हम कोशिश करेंगे कि ये CMU रखे. जाहिर है the custodians of those of this law is people like Qamar, because they are going to be here even when this government goes away. Caretaker government का period खत्म हो जाएगा. हमारा काम ये है कि जो काम अच्छा हुआ है उसको हम आगे लेके चलें, ताकि really implementation of the actions that were taken under the previous regimes is continued. जो अच्छे वाले हैं, because we will benefit even in a short time from this. SOEs जो कि that come under the scope of the act will not comply with public sector companies corporate governance rules of SECP, but SECP is hand in glove in this whole framework. I must tell you that. Federal government shall establish and retain strategic SOEs completely partially engaged in strategic functions, और essential SOEs जो जहाँ पे
प्राइवेट सेक्टर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकेगा, वहाँ पे वी विल ट्राई टू रिटेन दिस बट लिफ्ट द गेम फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली. उनकी नॉन स्ट्रेटेजिक SOEs को over the period we should phase out, as I see. Obviously, as we move forward, the institutional arrangements will be more carefully laid out. Thought process is already there. We will have to have a hub of appointments and training of directors for the boards of SOEs. There will be issuance and reporting of guarantees for SOE. आपको पता है, with the help of these SOEs, we have to really do the due diligence of where the guarantees are needed, because these guarantees cost us a lot and we have the limits on guarantees, as you know from the IMF program. और public service obligations को हमने ठीक से measure करना है, ठीक से record करना है, and we will have public service obligation pay more analytical work done of this act and all that. So I just wanted to share this with you. The basic instructions are, no directions will be given to an SOE or a board of SOE by any ministry division to perform any PSO obligation or to bar the SOE from performing any operational function without the approval of the federal government. And obviously I've laid out the institutional mechanism. There's a lot out there. We are happy. हमारा ये website पे है policy paper, आप इसको ज़रूर study करें. And obviously Qamar Saab is available for any Q&A moving forward, and I'm here for a little while, but I do have another meeting. Unfortunately, I was available from 1 to almost 2, but I'm going to sit with you, and if there are questions. प्लीज ये करेंगे सवाल मैंने. मुख्तसर काइंडली रखिएगा और अपना नाम बता के इंट्रोड्यूस करा दें. तो आप राइट से शुरू करते हैं. आप बताइए मेहताब हैदर साहब. मेरा नाम मेहताब है. ये 200 से ज़्यादा SOEs हैं टोटल नंबर, और आज से चंद साल पहले तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलरली एक एनुअल रिपोर्ट इसके बारे में जारी करता था. जी. ये 2020 का एक तो फिगर जो है, लेटेस्ट फिगर्स क्यों नहीं अवेलेबल, इस पर कब तक काम हो जाएगा, और दूसरा ये बताएं कि ये लॉसेस में पिछले 3, 4, 5 साल से ये लॉसेस में, वरना पहले ओवरऑल एक एग्रीगेट प्रॉफिट होता था. तो इसमें सबसे बड़ा लॉस जो है वो पावर सेक्टर की कंपनीज में. तो इसको आप कैसे जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे? PIA है और ये पावर सेक्टर की कंपनीज, ये कब तक आपका प्लान कब तक है, और कब तक आपने इनको जो है वो या डिस्पोज ऑफ करना है या इनको टर्न अराउंड करना है? जी, thank you for this question. I think let's take few more questions and then we come. जो आपने बताया है एक बर्डन है स्टेट गारंटीज का इन SOEs के लिए, कोई आपने कैलकुलेट किया है कि ये फॉरेन करेंसी में है क्योंकि सारा, तो कितना बर्डन कम किया जाएगा? देखें, अभी तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा तो फिर उस पर ये सारी कैलकुलेशंस होंगी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बट डेफिनेटली वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द गारंटीज दैट हैव बीन इशूड. अच्छा मैडम, ये जो ये आपने SECP की जो रेगुलेशंस बनी थी ये 2013 में बनी, इम्प्लीमेंट नहीं हुई उस टाइम से, बट जहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई वहाँ पे बोर्ड्स ने जब उनके पास पावर्स आई तो उन्होंने अपनी मर्जी से CEOs लगाए, अपनी मर्जी से सैलरीज लगाई. सुई के जो MDs हैं वो 1-1 करोड़ रुपया सैलरी ले गई और सारे स्टाफ की तनख्वाहें बढ़ा दी गई. और जो बोर्ड्स हैं, अभी एक रिसेंटली एक केस आया NTDC में, बोर्ड ने अपने एक बंदे को MD लगा दिया NTDC में, और उन्होंने वहाँ पे तनख्वाहें भी बढ़ाई और उन्होंने ठेकों में भी अपनी मनमानी शुरू कर दी. तो ये जो आप ये पावर देना चाह रही हैं, इसमें मैकेनिज्म क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होगी? क्योंकि जो भी आप रूल्स ये लगाते हैं, प्राइवेट सेक्टर आके ज़्यादा बड़ा माफिया बन जाता है गवर्नमेंट एंटिटीज में. आप प्लीज क्वेश्चन दे दें पहले. जो आपने बात की है स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक, ये कौन डिसाइड करेगा
ये आपकी कमेटी डिसाइड करेगी स्ट्रेटेजिक कौन सी एसओईज है, नॉन स्ट्रेटेजिक है। दूसरा, अभी भी कई इदारे ऐसे हैं जहाँ पर सेक्रेटरीज बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और सीईओज भी हैं, जिस तरह पीटीपी कॉरपोरेशन है, सेक्रेटरीज को वहाँ पे एमडी लगा दिया गया, अब चेयरमैन भी होंगे। और भी कई इदारे हैं जहाँ पर बर रास्त इंटरवेंशन है, सेक्रेटरीज बैठे हैं हर जगह पे, एचएस बैठे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं, और सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये वो जो स्ट्रेटेजिक नॉन स्ट्रेटेजिक कौन डिसाइड करेगा कि कौन से इदारे स्ट्रेटेजिक हैं, कौन से नॉन स्ट्रेटेजिक है? क्योंकि माजी में ये हुआ है कि बाद इदारों को सिर्फ एक लाइन कह दिया था स्ट्रेटेजिक है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। जी टेक मोर क्वेश्चंस फर्स्ट। हाँ, थोड़ा एक और ले लेते हैं। चलिए ये 3 यहाँ से ले लेते हैं। ये बता दें फिर नहीं रहेंगे, लिखा हुआ लिस्ट इट डाउन मैं करेंगे। ये फरमाइएगा कि जो इन इदारों के बहुत सारे इदारे हैं जिनमें हमेशा जब उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ की एम्प्लॉयज़ यूनियन या लेबर यूनियन जो है वो बहुत बड़ा इशू है, हार्डल क्रिएट करती हैं। तो जब आप इनको रिस्ट्रक्चर करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, तो आपने ये ध्यान रखा है कि एम्प्लॉयज़ का क्या होगा अगर उनको उनको निकालना है इन इदारों से, बाद एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है, उनका फ्यूचर क्या होगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप भी बता दीजिए। शहबाज मैम, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो पीआईए के बदलने की सूरत इशू वो पीआईए, बाकी 2 चीज़ें ऑन एंड ऑफ आपकी चल रही है। पीआईए में अब बात हो रही है उसकी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग, उसके ऊपर आपका अपना क्या व्यू है? अगर ये करेंगे डेट की रिस्ट्रक्चरिंग तो क्या उसका स्टेटस होगा? क्योंकि विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने आपसे कहा कि 13 बिलियन इन बिजनेस एज यूजुअल रफली उनकी मंथली उनकी नीड है। सेकेंडली अगेन वो एक नेशनलिज्म का और एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर उस एक किस्म के वो जज्बाती नारे लगवा के आपसे हमेशा पैसे ले जाते हैं। वुड यू ट्रीट द पीआईए एज जस्ट अ पीआईए, any company registered under any act of Pakistan, and you will not give money to the PIA, or again you will come under some pressure? I know you will not, but will you come under some pressure and give money to PIA which it is demanding right now? Thank you very much. Thank you, Ji. Okay, now let's take the questions. Let me first, since I've spoken a lot, पहले अगर आप कुछ दे दें और फिर मैं I'll address the remaining. तो एक तो ये है 2013 के जो implementation का था, वो आप बता दें। You can answer any of these and then I'll implement. तो वो मैडम ने अपनी माइक ऑन कर दीजिए। मैडम ने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है कि इस लॉ के आने के बाद और इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंट होने के बाद इन एसओईज के ऊपर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल इन्फोर्स नहीं होंगे। इस लॉ के तहत वो काम करेंगे और इस पॉलिसी के तहत, सो वो एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये ज़रूर है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो CMU है वो असेस करेगा कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट गवर्नमेंट, और एक ओवरऑल ओवरसाइट का एक मैकेनिज्म इन प्लेस होगा जो कि माजी में नहीं है। दैट्स ऑल। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और दूसरा भी दे दें। दिस वाज द स्पेसिफिक क्वेश्चन। गारंटीज का भी आप बता दें थोड़ा और। जी, गारंटीज का इसमें हम ट्रांसपेरेंसी ऐड कर रहे हैं कि गारंटीज का जो डेटा है वो अवेलेबल हो और उसमें क्लैरिटी हो, और वंस दिस इज इन प्लेस तो यू बी एबल टू एक्सेस दैट डेटा आल्सो। सो उसमें कोई ऐसा वहां नहीं रहेगा। जैसे मैडम ने कहा कि गारंटीज का डेटा इस वक्त भी मौजूद है, और आपने जो कहा था कि वो सिर्फ फॉरेक्स की नहीं, फॉरेक्स की वो हमारी यूपी की गारंटीज भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी हैं, लेकिन ओवरऑल मैटर तो वही करता है नहीं, दोनों ही मैटर करते हैं हमारे भी दोनों। अच्छा चलिए, सारे क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ दीजिए। नहीं, you are also part and parcel of this and you have done phenomenal work. मेरा ये एक उसूल है कि जो काम करता है उसको लीडरशिप दी जाए। सो पहला क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन पे, देखिए द डिसीजन मेकिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन हैज़ ऑलरेडी बीन मेड। देयर इज़ अ लिस्ट of privatization that is available with the Privatization Commission, and this question ought to be directed at the Privatization Commission. अब full time minister Privatization Commission के हैं, और ये list has a political backing from the past, और उसमें काफ़ी सारी organizations हैं, और हमने जो लीगल मैंडेट दिया गया था इस गवर्नमेंट को, केयर टेकर को, उसमें
ये कहा गया था कि वी कुड कंटिन्यू द प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, and some of those elements are covered under, as long as these are ongoing, active in the pipeline. तो ये काम शुरू हो चुका है from the day I was handling that portfolio. but आपको पता होगा कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है हमेशा एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर के पास होता था. इट वाज नॉट विद द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिवीजन, और तो मेरे जो 3 पोर्टफोलियोज हैं. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ फुल टाइम मिनिस्टर. और चूंकि आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ है, आप उनको भी सवाल कीजिएगा इसका. स्टेट गारंटीज are a reality, but there are limits on the state guarantees imposed by the IMF, and we are well within those guarantees. जो strategic versus non-strategic की decision कौन करेगा? देखिए, वैसे तो if you pick up the list, you can make up your mind in a minute what is strategic and what's non-strategic. इसके लिए कोई magic solution नहीं है, but the matter of strategic and non-strategic proposal will be developed based on sound criteria by the State-owned Enterprise Department of the Ministry of Finance in consultation with relevant ministries. It is not a fully empowered director, but इनका काम है teamwork with the ministries. और once वो हो जाएगा, then it will go to the cabinet subcommittee on SOEs. अच्छा, उसके बाद आपने ये PSQ का क्या कहा था? PSQ मैंने लिखा हुआ, तो किसी का सवाल मैंने भूल गई हूँ. PI का मैं बात मैडम वो था कि अभी भी कई SOEs हैं जिनके जो हेड्स हैं वो सेक्रेटरीज भी बने हुए हैं, चेयरमैन भी हैं, CEOs भी हैं. देखिए, now this will all be under review, but you need to understand when government has a shareholding or the concerned ministry is in charge of that SOE, तो in accordance with the shareholding of कुछ ऐसी ministries, कुछ ऐसी SOEs होंगी जो बहुत heavily owned है by